हेलो स्टूडेंट्स, मैं दर्शन दवे, फिजिक्स टीचर। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स लॉ की थियरी तक हमने देखा था। आज उसके बेस पे न्यूमेरिकल ऑलरेडी इलस्ट्रेशन 1.1, 1.2, 1.3 डिस्कस कर चुके हैं। अब आज देखेंगे इलस्ट्रेशन 1.4, Coulomb's law for electrostatic force between the 2 point charges and Newton's law for gravitational force between the two stationary point masses. Both have inverse square dependence on distance between the charges and masses. A. Compare the strength of these force by determine ratio of their magnitudes. First for an electron and proton, second for two protons. Now we know that electric force between electron and proton at distance r apart is, according to Coulomb's law, we can say that F equal to K Q1 Q2 by R square. ठीक है, तो Q1 हम लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड Q2 हम लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो Q1 इक्वल टू लेंगे प्लस ई, Q2 हम लेंगे माइनस ई, और F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये, तो F को हम लेंगे Fe। सो हमको इक्वेशन मिलेगा Fe इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वेर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज वन इज प्रोटॉन, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव। सो अट्रैक्टिव फोर्स टेक्स प्लेस बिटवीन देम। दिस अट्रैक्टिव फोर्स is denoted by negative sign. Now gravitational force between proton and electron is given by Fg equal to g mass of proton mp mass of electron me upon r square. ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग माइनस साइन। अब हमको फाइंड करना है ये दोनों का रेशियो, Fe अपॉन Fg। लेट अस टेक इन मैग्नीट्यूड। तो हियर दिस अपॉन दिस करेंगे तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर रहेगा के ई स्क्वायर, नीचे रहेगा जी एम पी एम ई। तो ऊपर के ई स्क्वायर, नीचे जी एम पी एम ई। पुट द वैल्यू ऑफ के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इज 9 into 10⁻⁹, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 द होल स्क्वायर, जी gravitational constant 6.67 into 10⁻11, mass of proton 1.67 into 10⁻27, and mass of electron is 9.1 into 10⁻31. So by calculating this comes out to be 2.4 into 10⁻39. Here in the LHS we have ratio of two force, matlab here we have ratio of equal quantity, so it is unitless. ठीक है, so part 1 for an electron and proton we have already covered. For electron and proton the ratio of Fe to Fg is 2.4 into 10⁻39. now second part है for two protons. so for two protons ये इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, यहाँ पे ये इक्वेशन में टू प्रोटॉन्स है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम लेंगे सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन, बाकी सब सेम, क्योंकि के और जी कांस्टेंट होते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मतलब ई जो होता है वो भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए क्या होता है, सेम। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की जगह पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पे हमें लेना है मास ऑफ प्रोटॉन। सो ये इक्वेशन कैसे बनेगा, Fe by Fg इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन जी एम पी इंटू एम। By putting the value of k 9 into 10⁻9, e 1.6 into 10⁻19 the whole square, g 6.67 into 10⁻11, mp 1.67 into 10⁻27, mp 9.1 into 10⁻31. So this comes out to be 1.3 into 10⁻36. Okay, now the next question is estimate acceleration of electron and proton due to electric force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. Okay, so here magnitude of force between electrons and proton according to Coulomb's law
we can say that F equal to K Q1 Q2 by R square. Here Q1 इक्वल टू हम लेंगे E, Q2 इक्वल टू हम लेंगे E, तो F की वैल्यू क्या आएगी K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर. By placing the value of constant K 9 into 10 raised to 9, E 1.6 into 10 raised to minus 19 the whole square, R the distance आपको दिया है 1 एंगस्ट्रॉम. 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 raised to minus 10 meter. Okay, so 10 raised to minus 10 meter having square over here, so its value 2.3 into 10 raised to minus 8 Newton. अब आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Force equal to mass into acceleration. So acceleration of proton is force equal to mp into ap. So ap equal to f by mp. What is f? 2.3 into 10 raised to minus 8 Newton, and mp equal to 1.67 into 10 raised to minus 27. So this comes out to be 1.4 into 10 raised to 19 meter per second square. Now acceleration of electron. So force equal to again mass into acceleration, mass me. So ae is equal to f by me. So f is equal to 2.3 into 10 raised to minus 8 Newton, and m equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 Newton, minus 31. So a is equal to 2.5 into 10 raised to 22 meter per second square. So here it is illustration number 1.4. सो देखो पहले इसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं. सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस जी एम पी एम ई बाय आर स्क्वायर. बाय टेकिंग द रेशियो आर स्क्वायर comes out cancel, so k square upon g mp me. By placing the value we can get the answer. Now for two protons we have to interchange. Instead of we have to change a value of me, a value of proton, instead of me we have to place only mp. So k square upon g mp into mp. So by placing the value we can get the answer. So it comes out to be 1.3 into 10 raised to minus 36. अब आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. के इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, E equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 the whole square, and the distance between them is 1 angstrom, and 1 angstrom equal to 10 raised to minus 10 meter square. So we can get the answer F equal to 2.3 into 10 raised to minus 8 Newton. Now to find the acceleration of proton, force equal to mass into acceleration. So here mass of proton, acceleration of proton. So acceleration of proton is equal to F upon mp. By placing value of F, by placing value of mass of proton, we get acceleration of proton. Now acceleration of electron, F equal to me into AE. So AE equal to F by me. So what is the value of force? 2.3 into 10 raised to minus 8, and me equal to 9.11 into 10 raised to minus 31. So we get AE equal to 2.5 into 10 raised to 22 meter per second square. बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. A charged metallic sphere is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere B is held by insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeters shown in figure A. So here we have a sphere A suspended by nylon thread, and here we have sphere B. The distance between them is given, it is 10 centimeter. Now sphere A and B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown in figure B. So ये figure B में यहाँ पे क्या है, A touch with sphere C and B touch with sphere D. Remember that C and D both are uncharged, but A and B are charged sphere. Okay. Now C and D are removed and B is brought closer to A. B is brought closer to A.
the distance 5 centimeter between their centers as shown in figure C। तो अब हमने क्या किया, अब हमने C और D को रिमूव कर दिया और A और B के बीच में कितना डिस्टेंस रखा हमने, 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन ऑफ A on the basis repulsion of A and B on the basis of Coulomb's law। sphere A and C and sphere B and D are identical। बेटा ये important statement आपको दिया है, A और C, B and D are identical size। Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ऐसा है कि A जब भी A और C को हम कांटेक्ट में लाते हैं, दोनों इक्वल इन साइज है, तो मतलब कि चार्ज होगा वो A और C में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल डिवाइड होगा। वैसे ही B एंड D दोनों की साइज भी कैसी है, इक्वल। तो जो यहाँ पे चार्ज B के ऊपर जो चार्ज होगा वो भी इक्वली डिवाइड होगा B और D के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। लेट टेक ओरिजिनल चार्ज ऑन A इज Q1 एंड B इज Q2। हम सपोज लेते कि सपोज A के ऊपर कितना चार्ज है, Q1, और B के ऊपर कितना चार्ज है, Q2, और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, तो वो जो सेपरेशन है वो कितना है, सपोज स्मॉल r। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द फोर्स बिटवीन देम F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हियर R इज 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, अब हमने A को C के कांटेक्ट में लाए और B को D के कांटेक्ट में लाए। सो नाउ A इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ C, सो चार्ज ऑन A इज Q1/2 एंड चार्ज ऑन C इज Q1/2। वी नो दैट दोनों A और C दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, तो चार्जेस जो होंगे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब A के ऊपर कितना चार्ज हुआ, Q1/2, और C के ऊपर कितना चार्ज होगा, Q1/2। सिमिलरली B इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ D, सो चार्ज ऑन B इज Q2/2 एंड चार्ज ऑन D इज Q2/2। तो A, B और D दोनों आइडेंटिकल है, तो जितना चार्ज B के ऊपर होगा वही चार्ज B और D में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो B के ऊपर Q2 चार्ज है, तो ये Q2 चार्ज B और D दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो B के ऊपर भी चार्ज होगा Q2/2, D के ऊपर भी चार्ज होगा Q2/2। अब ये फिगर C में हमने क्या किया है, तो A और B को कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर जितना दूर हमने रखा है, तब हमें फोर्स फाइंड करना है। तो फ्रॉम फिगर C द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 5 सेंटीमीटर। लेट टेक दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, R डैश। तो ये जो R डैश है वो 5 सेंटीमीटर, पहले R कितना था, 10, और R डैश कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट R डैश इक्वल टू R/2। So now force between A and B comes out to be F dash is equal to, according to Coulomb's law, K Q1/2, because charge on A is now Q1/2. Charge on B is Q2/2 divided by distance between them is R/2 the whole square. So K Q1 Q2 और नीचे होगा R स्क्वायर। ये 2 2 जा 4 नीचे जाएगा और ये जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डैश का आंसर क्या होगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। द प्रीवियस फोर्स वॉज ऑल्सो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और अभी जो फोर्स आया वो भी कितना आया, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो जो फोर्स है वो इनिशियल फोर्स जितने, जो अभी जो फोर्स आया उसकी वैल्यू इनिशियल फोर्स जो था उसके जितने ही हुई। सो इट इज द सॉल्यूशन। ठीक, अब बेटा हम बात करते हैं एक्सरसाइज में 1.1। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ कूलम and 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो यहाँ पे आपको Q1 कितना दिया है, तो Q1 is given 2 × 10⁻⁷ कूलम, Q2 is given 3 × 10⁻⁷ कूलम। Okay, now the force and the distance is 30 centimeter, so convert it into meter because we have to do some in MKS, so it is 0.3 meter. Now force between two charges according to Coulomb's law, K Q1
Q2 by R square. K की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹, Q1 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 3 इंटू 10⁻⁷, and the distance between them is 0.3 the square, whole square. So value of F comes out to be 6 into 10⁻³ Newton. Okay. So here it is very easy sum because Q1 given, Q2 given, R given. So F equal to K Q1 Q2 by R square. We have to find out F by placing all the value. F comes out to be 6 into 10⁻³ Newton. Now exercise 1.2. The electric force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. So here charges are given and force also given. What is the distance between them? आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस. तो पहले ए देखते हैं डिस्टेंस. तो इन द सॉल्यूशन force on first sphere due to another is taken F and F is given 0.2 Newton. See, one charge Q1 is given, it is 0.4 microcoulomb, and second Q2 is given, Q2 is equal to 0.4 into 10⁻⁶ coulomb. Q2 is given minus 0.8 microcoulomb, so minus 0.8 into 10⁻⁶ coulomb. आपको फाइंड करना है सेपरेशन मतलब डिस्टेंस. तो अकॉर्डिंग टू Newton's law, F equal to K Q1 Q2 by R square. Here F is the magnitude of force. So R square equal to K Q1 Q2 by F. So R square equal to what is K? 9 into 10⁻⁹. What is Q1? 0.4 into 10⁻⁶. What is Q2? Q2 is minus 0.8 into 10⁻⁶. But ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? Attraction. So negative sign shows attractive force, but here we are taking magnitude only because we have to find out distance, and distance always scalar quantity. Distance कभी नेगेटिव में आता नहीं है. तो जो चार्ज की वैल्यू हम लेंगे जो भले ही माइनस दी है बट हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. माइनस दिए तो हम एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो हमको इतना तो पता चलेगा कि ये जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव. So by placing the positive value of Q2, तो Q2 की वैल्यू क्या है? 0.8 into 10⁻⁶. And what is F? 0.2. So R square comes out to be 144 into 10⁻⁴. So 144 into 10⁻⁴. So its answer is 12 into 10⁻² meter. So we can take R equal to 0.12 meter. ठीक है. अब यहाँ पे पार्ट बी क्या है? What is the force on the second sphere due to first sphere? हमने यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में क्या लिया था? Force on first sphere due to another sphere is taken F. Let us take force on second sphere by the first sphere is F dash. But according to Newton's third law, अगर force on first sphere due to another is taken F, हम इसको action बोल दे तो फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर बाय द फर्स्ट स्फीयर इज एफ डैश. इसको हम बोलेंगे रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. सो फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर बाय द फर्स्ट स्फीयर इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एफ ऑल्सो. सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ. यानी जितना फोर्स फर्स्ट स्फीयर सेकेंड स्फीयर पे लगाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उतना ही फोर्स सेकेंड स्फीयर फर्स्ट स्फीयर पे लगाएगा. सो जो फोर्स का आंसर होगा वो कितना होगा? प्रीवियसली आपको दिया है 0.2 न्यूटन तो ये भी कितना होगा? 0.2 न्यूटन. ठीक है. तो बेटा ये था एक्सरसाइज 1.2. अब हम देखते हैं 1.3. एक्सरसाइज में 1.3 चेक द रेशियो K E square upon G ME MP इज डायमेंशनलेस. आप जानते हो स्मॉल के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. स्मॉल ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एमपी मास ऑफ प्रोटॉन. इज डायमेंशनलेस. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? ठीक है. तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशन ऑब्टेन करते हैं. उसके पहले हम ये सबके इंडिविजुअल यूनिट्स लेते हैं. यूनिट ऑफ जी
देखो F इक्वल टू जी एम पी एम ई बाई आर स्क्वायर है, G को हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो G इक्वल टू क्या होगा F आर स्क्वायर बाय एम पी एम ई। F का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर उसका स्क्वायर, और kg इंटू के जी यानी kg स्क्वायर। यूनिट ऑफ एम पी एंड एम ई एंड एम पी दोनों मास है तो उसका यूनिट क्या होगा किलोग्राम। यूनिट ऑफ ई स्क्वायर, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका यूनिट होता है कूलम, सो यूनिट ऑफ ई स्क्वायर इक्वल टू कूलम स्क्वायर। एंड यूनिट ऑफ के, तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सो स्मॉल k का आंसर क्या होता है F आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F का यूनिट होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और कूलम इंटू कूलम मतलब कूलम स्क्वायर। तो ये चारों के हमने यूनिट ऑब्टेन किए। सो यूनिट ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी एम 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 ई एम पी, के का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ई स्क्वायर का सी स्क्वायर, जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर वो डिनोमिनेटर में है, एम ई और एम पी के जी इंटू के जी। तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, कूलम स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, किलोग्राम किलोग्राम भी कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे यूनिट इसका आएगा नहीं, सो दिस क्वांटिटी इज यूनिट लेस, सो इट इज डायमेंशन लेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना था कि ये जो क्वांटिटी है इसका डायमेंशन होता है या डायमेंशन लेस होती, सो इट इज डायमेंशन लेस। अब हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। सो नाउ के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, के इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻⁹, charge of electron 1.6 into 10⁻⁹ the whole square, G constant 6.67 into 10⁻11, mass of electron 9.11 into 10⁻31, mass of proton 1.67 into 10⁻27, तो this comes out to be 2.29 into 10⁻39। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन ऐसा है कि what does the ratio signify, यानी ये रेशियो आपको क्या बताता है। आपको पता है बेटा कि एफ ई क्या होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और एफ जी क्या होता है जी एम पी एम ई बाय आर स्क्वायर। अगर हम एफ ई बाय एफ जी करेंगे, ठीक है, तो के स्क्वायर ऊपर होगा और जी एम पी एम ई नीचे होगा। ठीक है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी आपको दी है, मतलब दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी ये क्या है, तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फॉर द गिवन डिस्टेंस। गिवन डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स था तब भी डिस्टेंस आर था, ग्रेविटेशनल फोर्स था तब भी हम डिस्टेंस सेम लेते हैं। तो ये दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको ये क्वांटिटी मिलेगी। यानी ये आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया, तो इसका आंसर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो बेटा अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। बट यहाँ पे जितने भी हमारे वीडियोस है उसमें आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलती है। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल सारे इलस्ट्रेशन मिलते हैं। ठीक है, तो आप ये वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके।